I had never been to India before, but the country had always held a special place in my imagination. Maybe it was its sheer size and one of sixth of the world population, an estimated 2000 distinct ethnic group and more than 700 languages spoken. Maybe it was because I had spent a part of my childhood in Indonesia listening to the epic Hindu elves of the Ramayana and Mahabharata, or because of my interest in Eastern religions, or because of group of Pakistani and Indian colleague friends who taught me to cook dal and keema and turned me on Bollywood movies. More than anything, though, my fascinations with India had to do with Mahatma Gandhi, along with Lincoln King and Mandela. Gandhi has profoundly influenced my thinking as a young man. I would studied his writing and found him giving voice to some of my deepest instincts. His nation of सत्याग्रह, ये कहा बराक ओबामा ने इंडिया के बारे में अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड। इसके रिव्यूज मैं पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिटेल में दे चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था दोस्तों कि मैं आपको एक और वीडियो बना के लाऊंगा जो मैं उन्होंने कुछ दूसरे देशों के बारे में, टॉलवर्ड्स लीडर्स के बारे में क्या उन्होंने बोला है, कि स्पेसिफिक वीडियो कुछ कंटेंट जो कंट्रोवर्शियल भी बने उनको आपके लिए एक दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा। आज मैं वही वीडियो आपके लेकर आया हूँ। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टीटी बुकट्यूबर में स्वागत करता हूँ। ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी ये थी उनकी भारत के बारे में बराक ओबामा के विचार। इसके बाद अगला मैं आपको बताऊंगा उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उनके बारे में बराक ओबामा ने क्या कहा। मनमोहन सिंह, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मीनवाइल had engineered the modernization of the nation's economy. A gentle, soft-spoken economist in his 70s with a white beard and a turban that were the mark of his Sikh faith. But to the Western eye lent him the air of holy man. He had been India's finance minister in 1990s, managing to lift millions of people from poverty. For the durations of his tenure as a prime minister, I would find Singh to be wise, thoughtful and honest. तो ये बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह के बारे में कहा। उन्होंने उन्हें अपने समय का, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया, उसको उदार बनाने के लिए उन्होंने काम शुरू करा और उसको मॉडर्नाइजेशन पे काफ़ी काम करा। वो एक रिलीजियस व्यक्ति थे और वो उनकी जो छवि थी वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति की वो मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने पेज नंबर 600 में भी मनमोहन सिंह के बारे में लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह seemed like a fitting problem of this progress, a member of the tiny, often persecuted Sikh religious minority who had risen to the highest office in the land, and self-affecting technocrat who had won people's trust not by appealing to their passions but by bringing about higher living standards and maintaining well-earned reputation for not being corrupt. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह भारत के उस उच्च पद पर पहुंचे और वहाँ पर 2 बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री रहे, 2 टेन्योर भारत के प्रधानमंत्री रहे और उसके बावजूद भी उन्होंने करप्शन का एक छोटा सा दाग भी उनके ऊपर नहीं लगा। ये उनकी ओपिनियन थी मनमोहन सिंह के बारे में। उसके बाद देखिए उन्होंने सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की अभी की भी प्रेसिडेंट है, उस समय भी प्रेसिडेंट थी, पेज नंबर 601 में उनके बारे में क्या लिखा उसको देखिए, उसको पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। सोनिया गांधी, the Italian born widow of former Prime Minister Rajiv Gandhi and the head of the Congress party, who had declined to take the job of herself after leading her party coalitions to victory and had instead appointed Singh
More than one political observer believed that she had chosen Singh precisely because, as an elderly Sikh with no national political base, he posed no threat to her 40-year-old son Rahul, whom she was grooming to take over the Congress party. इसको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जो उस समय कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के लिए इसलिए चुना, वो उन्होंने नहीं कह रहे हैं, ये बाराक ओबामा नहीं कह रहे, बट वो कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने उनसे ये कहा, उनके थ्रू उनको ये पता चला कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री के पद के लिए उस समय चुना क्योंकि वो जो है उनका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बेस नहीं था, और सिंस वो राहुल को पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश करना चाहती थी, उसको कांग्रेस की बागडोर संभालना चाहती थी, तो उन्हें मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिससे कोई थ्रेट नहीं था, इसलिए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। नेक्स्ट, अब आप देखें कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा। पेज नंबर 601 मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। At dinner that night, Sonia Gandhi listened more than she spoke, careful to defer to Singh when policy matters came up, and often steered the conversation towards her son. It became clear to me, though, that her power was attributable to a skewed and forceful intelligence. H for Rahul. अब राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं। H for Rahul, he seemed smart and earnest, his good looks reassembling his mother's. He offered up his thoughts on the future of progressive politics, occasionally pausing to prod me on the detail of my 2008 campaign. But there was a nervous, unformed quality about him, as if he were a student who had done the coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the patience to master the subject. इसको थोड़ा सा हिंदी में भी बताता हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एक डिनर होस्ट किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी थे। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह, ये एक क्लोज ग्रुप का डिनर था, तो जिसमें राहुल सोनिया डिस्कशन कर रही थी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से, तो बीच बीच में राहुल को पुल करती थी कि अब आप अपने विचार दो, ये बताने के लिए कि राहुल काफ़ी स्मार्ट हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं और काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं इंडिया के पॉलिटिक्स में, ये जताने के लिए बार बार उनको डायलॉग में लेकर आती थी, ऐसा बोलते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि वो ही इज़ ए गुड लुकिंग, स्मार्ट, सब बढ़िया, बहुत अच्छी बात। उनका जो नेचर है उनमें एक नर्वसनेस, जब वो किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो ऐसा फील होता है ही इज़ नर्वस। अनफॉर्म्ड का मतलब हो गया कि उनका कोई मतलब जब वो बात रखते हैं कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जब किसी टॉपिक पर बात करते हैं कि जैसे किसी बच्चे को होमवर्क दिया जाता है तो वो होमवर्क करके अपने टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बट वो सब्जेक्ट के बारे में उसकी नॉलेज इतनी कम होती है और या उसके अंदर वो एटीट्यूड नहीं होता है जिसकी वजह से वो ये शो कर सके कि वो उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक के बारे में एक्सपर्ट है। तो ये इनके विचार थे राहुल गांधी के बारे में। तो इससे पहले कि मैं दूसरा आपको बताऊं वर्ल्ड के किसी लीडर के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये उनके विचार, मतलब बाराक ओबामा की एक विशेष बात ये है इस किताब के अंदर जो आपको पढ़ने को मिलेगा, जो आप पढ़ेंगे, कि वो इतने बोल्ड, इतने ट्रांसपेरेंट, उन्होंने अपने विचार दुनिया के लोगों के बारे में, अपने कंट्री की विजिट के बारे में, इवन अपने देश के कई लोगों के बारे में उन्होंने इतने ट्रांसपेरेंटली चीज़ें बोली हैं। इट्स सरप्राइजिंग टू एवरीवन। और इतना बोल्डली कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में लिखता नहीं है यूजुअली। आई हैव नॉट सीन, वेरी रेयरली आई हैव सीन सच
towards leaders write such a way transparently about their opinions into their books. अब इसके बाद इनका अगला, इन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट थे सार्कोजी उस टाइम पे, पेज नंबर 335 में देखिए इनके बारे में क्या लिखा. सार्कोजी ऑन द अदर हैंड वॉज ऑल इमोशनल आउटबर्स्ट एंड ओवरब्लोन rhetoric with his dark, expressive, vaguely Mediterranean featured, ब्रैकेट में लिखा है, he was half Hungarian and quarter Greek Jew and small stature. देखिए, अंडरस्टैंड केयरफुली दिस लाइन, and small stature, ब्रैकेट में लिखा है, he was about 5'5" but wore lift in his shoes to make himself taller. He looked like a figure out of a Tolstoy's-Lautrec painting. Despite coming from a wealthy family, he readily admitted that his ambitions were fueled in part by a lifelong sense of being an outsider. तो इसको थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ. जो उस समय के फ्रांस के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे सार्कोजी, उनके बारे में कहा छोटे कद के व्यक्ति थे. और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो लाइन है, छोटे कद के व्यक्ति थे, अपने को थोड़ा लंबा दिखाने के लिए नीचे हील लगाते थे अपने जूते पे, जिससे कि वो थोड़ा सा लंबे कद के समझ सकें. तो आप समझ सकते हो किस तरह से चीज़ों को नोटिस करके बाराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा. नेक्स्ट, इन्होंने एक सऊदी अरब की जब यात्रा करी, पेज नंबर 362 में आपको पढ़ने को मिलेगा. वहाँ के उस समय के जो किंग थे अब्दुल्ला, देखिए उनके बारे में उनकी जो पर्सनल टॉक थी, चलते चलाते जैसे बात होती है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे करते हो, आपके बच्चे कितने हैं, एक जो कैजुअल टॉक होती है, देखिए उसको भी लिखा हुआ है. क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ. द किंग आस्क अबाउट माई फैमिली एंड आई डिस्क्राइब हाउ मिसेल एंड गर्ल्स वेर adjusting in life in the White House. He explained that he had 12 wives himself. News reported put the numbers closer to 30, along with 40 children and dozens more grandchildren and great grandchildren. I hope you don't mind me asking you, Your Majesty. ये पूछा बाराक ओबामा ने. I said, but how do you keep up with 12 wives? Very badly, he said, shaking his hand wearily. One of them is always jealous of others. It's more complicated than Middle East politics. अब आप देखिए, उन्होंने उनकी जो 12 बीबियाँ हैं उनके बारे में पूछा कि आप कैसे एडजस्ट करते हैं. तो उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे से जेलस करती हैं और ये उतना ही टफ़ है बीबियों को मैनेज करना जितना कि उससे भी ज़्यादा टफ़ है जितना कि मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को मैनेज करना है उनके लिए. इस तरह की जो रोचक चीज़ें हैं, जो बातें उनकी पॉलिटिशियन के साथ हुई, आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी. इसके बाद इन्होंने बालामिर पुदीन के बारे में देखिए क्या बात बोली. पेज नंबर 464 में आपको पढ़ने को मिलेगा. इन्होंने लिखा, फिजिकली ही वॉज अनरिमार्केबल, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, अ रेसलर बिल्ड विथ थिन सैंडी हेयर, अ प्रोमिनेंट नोज एंड पेल watchful eyes. As we exchanged pleasant with our respective delegations, I noticed a casualness to his movement, a practiced distinctness in his voice that indicated someone accused to being surrounded by subordinates and supplicants, someone who had grown used to power. ये इन्होंने बारामिर पुदीन के बारे में कहा. बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, रेसलिंग टाइप बिल्ड हैं, बहुत ही स्मार्ट है, शार्प नोज, बहुत ही शार्प हैं. और ये थोड़ा सा इनकी जो इनके साथ जो मीटिंग थी, तो जो उस वक्त उस सिचुएशन में, उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे बालामिर पुदीन वहाँ पे, तो उस समय जो सिचुएशन इंडिया यूएस के साथ उनकी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो अपने कन्वर्सेशन में थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर लग रहा था कि बहुत सारे उनकी जो हैं व्यूज़ हैं वो थोड़ा डिफरेंट है. तो उन्होंने उसको कैसे हैंडल करा वो उन्होंने इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा. इसके बाद इन्होंने उस टाइम पे, ये जब रसिया विजिट में थे अपने टेन्योर के बारे में,
तो ये वहाँ उस समय जो सोवियत यूनियन पहले होता था, उसके जो प्रेसिडेंट थे गोर्बाचोव, जो बहुत ही फेमस व्यक्ति थे पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन के, इनके बारे में इन्होंने क्या कहा ये आप पढ़ेंगे 465 पेज, 465 नंबर पेज में आपको पढ़ेंगे. आई एम जस्ट रीडिंग फॉर यू गाइज. Here was a man who had once been one of the most powerful people on earth, whose instincts for reform and efforts at denuclearizations, no matter how tentative, had led to an epic global transformation and earned him the Nobel Peace Prize. How he now found himself largely dissent within his own country, both by those who felt he had surrendered to the West and by those who considered him as a communist throwback whose time was long past. तो ये वहाँ पे बाराक ओबामा जो है वहाँ पे सोवियत यूनियन के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव, उनसे मिले, उनके बारे में इन्होंने विचार रखे कि किस तरीके से, और थोड़ा और डिटेल में है ये, मैंने आपको कुछ कंटेंट उनके बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने जो लिखा, उसके बारे में उन्होंने जो कहा वो आपको बताया. इसके बाद ये लास्ट है, वीडियो लंबा हो जाता है, ऐसे बहुत सारे आपको रोचक चीज़ें मिलेंगी. जो ये लास्ट कंटेंट है ये मैंने उनकी चाइना विजिट के बारे में जो उन्होंने लिखा है, थोड़ा सा रोचक है, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है. 472 पेज में आपको मिलेगा, जिसमें जो चाइना के बारे में कहा जाता है कि वो कैसे स्पाई करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे यहाँ तक कि जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी मीटिंग्स को हाईजैक कर लेते हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने बड़ा ओपनली लिखा है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाराक ओबामा ने ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर में, आप देखोगे कि कितने ट्रांसपेरेंटली उन्होंने अपनी ओपिनियंस, वर्ल्ड के टॉल वर्ल्ड लीडर हों, चाहे अमेरिका के, यूएस के लोग हों, चाहे दुनिया के देशों के बारे में, उन्होंने इतना ओपनली, इतना फ्रैंकली, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी, दैट कुड नॉट बी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उससे एग्री कर रहे हो, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट केस. बट बाराक ओबामा ने अपनी इस बुक के अंदर, द प्रॉमिस लैंड के अंदर, चीज़ों को इतने ट्रांसपेरेंटली अपनी थॉट को रखा है जो 100% मैं अप्रिशिएट करता हूँ. अब इन्होंने चाइना के बारे में देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ इन्होंने क्या लिखा. 7 weeks later, Air Force One touched down in Beijing for my first official visit to China. We were instructed to leave any non-governmental electronic devices on the plane and to operate under the assumption that our communications were being monitored. Even across ocean, Chinese surveillance capabilities were impressive. During the campaign, they had hacked into our headquarters computer system. I took it as a positive sign for my election prospects that time. Their ability to remotely convert any mobile phone into a recording device, voice as was widely known, to make calls involving national security matters from our hotel. I had to go to shoot down the hall fitted with scientific compartmented information facility, a big blue rent plotted down in the middle of the room that hummed with an airy psychoplegic buzz designed to block any nearby listening devices. Some members of our team, इसको ध्यान से जरा सुने क्या लिखा है carefully. Some member of our team dressed and even showered in the dark to avoid the hidden camera we could assume had been strategically placed in every room, even the toilets. Marvin on the other hand said, Marvin उनकी टीम का बंदा था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था. He made a point of walking around his room naked and with the light on, whether out of pride or in protest wasn't entirely clear. तो अब आप समझ सकते हैं
कि चाइना के बारे में क्या ओपिनियन ग्लोबल लेवल पर होती है। बराक ओबामा ने ये किस्सा आपको सुनाया कि लोग जो हैं टॉयलेट में लाइट बंद करके उन्होंने शावर लिया, नहाया, बाकी सारे काम करे, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई अगर कैमरा, हिडन कैमरा लगाया है तो पिक्चर्स को कैप्चर ना कर सकें। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कहा गया कि उनके पर्सनल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको वहाँ पर रख लें प्लेन के अंदर। उनको चाइना में नीचे ले जाने की इजाज़त एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी। सिर्फ जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड डिवाइस होते हैं, एक्चुअली जब ये बड़े कंट्रीज़ के डेलीगेट्स जाते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। उनको भी एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये आपका डिवाइस है, ये यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा इसकी, ताकि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ख्याल में रखा जा सके। तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो वो रजिस्टर्ड डिवाइसेस के अलावा उनको कहा गया कि आप पर्सनल मोबाइल और जो गैजेट्स हैं उनको वहीं छोड़ दें। तो ये इस तरह की जो रोचक जानकारियां हैं, आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा। मैंने आपके लिए कुछ कुछ कंटेंट इस किताब के लीडर्स के बारे में जो थे वो इस वीडियो में आपके लिए लाने की मैंने कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और बाकी आप इस किताब को खुद पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है। बहुत ऐसे इनसाइड आपको वर्ल्ड के लोगों के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए दूसरा रिव्यू लेकर आऊँगा इसके बाद, और वो दूसरी जो बुक होगी वो आपकी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की जोसेफ मर्फी की बुक है, जिसको मैं रीड कर रहा हूँ। मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, हाउ द सबकॉन्शियस माइंड मेक्स क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है आपकी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में, उसके बारे में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को लेकर के वो बुक पढ़ रहा हूँ। उसको बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा चैनल। अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह के वीडियो आपके बनाने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।